Good morning, children of class 5. I hope you read the lesson. You are reading the lesson and preparing for your upcoming formative assessment. Okay, I hope you all are studying well and going through each and every lesson and each and every line. Please just go through the question answers, short type questions, objectives. Okay, because you will have both subjective as well as objective questions. Objective questions will be of 0.5 marks and total will be 20, and subjective will be of 1 mark each, total 10 questions. Okay, now if you remember, yesterday we were studying about balanced diet. As you all know, we have come to the lesson 4, that is food and deficiency diseases. Okay, I have already told you about the nutrients, the types of nutrients, and we had talked about balanced diet. Now, as we all know, a diet that contains all the 5 vital nutrients, that are the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, they are set, and that is there inside the diet with in sufficient amount, that is called a balanced diet. Now, in a balanced diet, we also need to mention about roughage and water. Although roughage is not any nutrient, but still roughage and water are both useful for our body. Okay, now we also talked about deficiency diseases yesterday. As I told you, what are deficiency diseases? Any disease that is caused because of the deficiency of any of the nutrient, that is called deficiency disease. For instance, if you don't have sufficient amount of vitamin in your body, then you will have vitamin deficiency diseases. Similarly, if you don't have protein in your body or carbohydrates in your body, then your body will have deficiency disease. Okay, now this deficiency disease is an illness of a body, and it can be classified into 2 categories. First is the communicable diseases. Communicable diseases are those which can be communicable, which are easily communicable. That means it can be easily spread. This is easily spreaded to other people, to other person. For instance, cold, cough, diarrhea, malaria, tetanus, rabies, polio, etc. Okay, now we have faced a lot of problems, like since we are living in a pandemic time. I must say that coronavirus, this is also a communicable disease because this is caused by virus. Okay, that means viral diseases are communicable diseases, and there are certain diseases also, like protozoan diseases, that is caused because of malaria. That example is malaria. Okay, now we'll come to another disease, that is called the non-communicable disease. In this disease, the disease will not spread to other person. It is non-communicable. Even if a person is having this disease, it will not be spreaded to another person. Example, diabetes, heart disease, cancer, asthma. Okay, now today we'll go deep into the communicable diseases. Please turn to page number 52. Okay, now see, what is a communicable disease? Communicable disease, that is spread from one person to another, this is called communicable disease. Okay, examples of such diseases are diarrhea. Now, what is a diarrhea? In this disease, the stomach of a person gets upset with frequent and watery stool. That means आपको अक्सर होता होगा मोशन. This is called diarrhea. Okay, now कभी ज़्यादा हो जाते हैं जब मोशन, जैसे आपके पेट सही नहीं है, इट इज़ हैविंग प्रॉब्लम एंड बार बार आपको स्टूल हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, दैट इज़ डायरिया. द पर्सन फील्स वेरी वीक. इस टाइम पे पर्सन का सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम ये है कि आपको बहुत वीक फील होगा ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि बार बार आपके बॉडी से स्टूल निकल रहा है, मिनरल्स निकल रहा है, हमारे बॉडी से वाटर निकल रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा वीक फील कीजिएगा. Okay, you will feel very weak. Now, when one person suffers from diarrhea, it is better not to have spicy or oily food. अगर आप डायरिया से परेशान हैं तो बेटर कि आप ऑयली और स्पाइसी फूड ना खाएं, बल्कि लाइट फूड खाएं, लाइक खिचड़ी, लाइक ओट्स. ओके, रिप्लेसिंग द लिक्विड फूड इन आवर बॉडी. और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड लें.
ना इसका रेमेडी क्या है? द बेस्ट फाइट अगेंस्ट डिहाइड्रेशन इज़ ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आपको ORS कहा जाता होगा पीने के लिए इस टाइम पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ORS लीजिएगा आपका बॉडी उतना ज़्यादा हाइड्रेट होगा और उतना ज़्यादा मिनरल्स और एनर्जी आपके बॉडी में जाएगा। इट इज़ गुड टू हैव फूड लाइक राइस सूप, बनाना, योगर्ट, मैश्ड पोटैटो। ये सब खाने से आप अपने बॉडी को फाइन रख सकते हैं अगर आप डायरिया के पेशेंट हैं। ओके नाउ there is an activity given in which you can easily prepare ORS. See, they have boiled 1 liter of water, they have added 5 tablespoons of sugar and also 1 teaspoon of salt, and they have mixed it well until the sugar and salt dissolves, and cool it, and then you can have this ORS many times, so that your water can be retained and your minerals can be retained back. Okay. Now next communicable disease that we will talk about is the cold and flu. Now cold and flu means fever. This spreads mainly due to air. Now this is airborne. That means this will be spreaded through air. The germs spread in air when sick person gets cough or sneezes. अक्सर होता है कि जब किसी को कफ और स्नीज़ होते हैं सिक पर्सन को, और अगर हम वहाँ पे आ गए हैं तो हमें भी वो चीज़ होने लगेगा, बिकॉज ये एयर से स्प्रेड होता है. Cold and flu. Now you have seen that in coronavirus same thing is happening. We are having fever, we are having cough, and this disease is easily spreading from one person to another. तो ये डिज़ीज़ कोल्ड या फ्लू वो वायरल डिज़ीज़ है, और दिस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओनली बाय टच. सिर्फ आप छूने से या सांस लेने से आपके इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है. नाउ यू कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाय कवरिंग योर माउथ. लेकिन हम लोग किस तरह से कवर कर सकते हैं? अगर अपने माउथ को आप कवर कीजिएगा, नोज़ को कवर कीजिएगा, नोज़ को क्लोज करके स्नीज़ कीजिएगा, देन और हैंड को वॉश कीजिएगा टाइम टू टाइम, देन आई थिंक यू विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस कोल्ड एंड फ्लू. मेडिसिन डू नॉट क्योर कोल्ड. ना कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो फीवर को डाउन करे. सो वी हैव टू गेट बेटर. तो इसीलिए नेचुरल रेमेडीज़ ही हमें अपनाना चाहिए, नहीं कि मेडिसिन लेना, क्योंकि मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं ना वो पैरासीटामॉल होता है, वो फीवर को नहीं डाउन करेगा, ये आपके बॉडी को के हीट को कंट्रोल करेगा. नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्यूबरकुलोसिस. नाउ व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस और TB इज़ कॉज्ड बाय द जर्म दैट स्प्रेड थ्रू एयर. ना ये भी जो है वो एयर से स्प्रेड होता है. ना उसके जो जर्म्स है वो एक ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे लंग्स, ब्रेन एंड बोन्स. ओके ना ये थ्री थिंग्स है, ब्रेन्स, बोन और लंग्स, इनको आप ट्यूबरकुलोसिस इफ़ेक्ट करता है. और ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू एयर. ना मोस्ट कॉमन TB अफेक्ट द लंग्स. ज़्यादातर TB जो है वो लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं. अ पर्सन विथ TB माइट लूज़ वेट. ना जिसको TB होता है वो अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, उनको फीवर आता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, एंड कॉट एंड कफ लॉट, और बहुत ज़्यादा खांसते भी हैं, और इवन कफ, और कभी कभी उनके मुंह से ब्लड भी आने लगता है. ना पेशेंट विथ TB कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विथ मेडिसिन. ना लेकिन अगर मेडिसिन हम लोग प्रॉपर तरीके से लें, डोज लें, तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का भी इलाज हो सकता है. दैट मीन्स इट इज़ क्योरेबल. ओके नाउ सी देयर आर, please do this exercise on your own. It's given below. Choose the correct option. Diseases are categorized into communicable or non-communicable, strand or stick, TB or cold. Now you have to mark it yourself. Okay, this is your homework today. In diarrhea, dash of a person gets affected: throat, stomach and mouth. Cold and flu spread mainly through air, water and gas. Tuberculosis, TB, is commonly affects the lungs, pancreas and nose. Okay, please, I want you all children, I want all of you to please do this exercise. Okay, now we'll come to the factors that is spread the communicable diseases. Now क्या आपको पता है कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से communicable disease spread होते हैं? Now
आई विल टेल यू कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड होते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर नंबर 1, लाइक जैसे कोई बीमारी जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस या पोलियो, ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो वाटर बॉर्न है और फूड बॉर्न है, मतलब वो खाना के ज़रिए फैलते हैं, पानी के ज़रिए फैलते हैं। क्या कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन से डिजीज़ेस, कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, पोलियो, ये सब वाटर बॉर्न भी हैं और फूड बॉर्न भी हैं। ओके, जैसे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स कैरी जर्म्स फ्रॉम फिल्थ एंड दे सिट ऑन। तो क्या है, फ्लाइज खासकर मस्कीटोज, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ये सब क्या करते हैं, वो लोग जर्म्स कैरी करके वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं खाने पे, एंड इससे वो लोग क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो लोग गंदगी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसको हम लोग खाते हैं। ना दीज आर ट्रांसफ़र टू द एक्सपोज्ड फूड। ना ये सब जो जर्म्स है वो हमारे फूड में जाता है, और ख़ासकर अगर आप देखोगे जैसे आप लोग गोलगप्पे खाते होंगे, देयर आर वेरियस स्टॉल्स, जो आप स्टॉल्स में खाना खाते हो कुछ, ये सब क्या होते हैं, सब जो वेंडर्स होते हैं वो अपने गंदे गंदे हाथों से बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा फूड जो है कंटामिनेट हो जाएगा। कंटामिनेट मतलब इट विल गेट डर्टी। कंटामिनेट का मतलब हुआ इट मीन्स डर्टी। ओके, तो हमें ऐसा खाना प्रिवेंट करना चाहिए जो मच्छर और मक्खी हो वहाँ पे, या फिर कोई गंदे हाथ से बना हो, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट, अदरवाइज़ हमें वो जर्म्स अफेक्ट कर सकता है, कर सकता है। ओके, तो if you want to save yourself from the communicable diseases, you have to be very cautious. You have to make sure that आप किसी को छुए ना। आप जब स्नीज़ करें तो माउथ क्लोज करके, आप ऐसे वेंडर्स के से ना कुछ खाएं नहीं जो गंदे हाथों से बनाते हैं, और ना ही खाना को खुला रखें और उसको खाएं, क्योंकि इंसेक्ट्स उसको जर्म्स फुल कर देते हैं। Now next we will move to diseases like chicken pox, measles, ringworm, whooping, etc. are all communicable disease। ना खासकर चिकन पॉक्स, मीजल्स और रिंगवर्म जो होते हैं ना, और जो कफ होते हैं ना, वो खासकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही होते हैं। वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होते हैं। अगर आप वहाँ पे आ जाते हो तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगा ना। देयर जर्म्स आर ट्रांसफर ना, वो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आते हैं, चाहे वो टॉवल के ज़रिए, चाहे वो हैंकरचिफ के ज़रिए, जब आप लोग शेयर करते हैं हैंकरचिफ। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड नॉट बी शेयरिंग टॉवल्स एंड हैंकरचिफ्स, बिकॉज ये सब जो जर्म्स है, हमारे जर्म्स ट्रांसफ़र होकर दूसरे के पास चले जाएंगे, और वैसे ही दूसरों के ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ जाएंगे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जर्म्स की वजह से ना। सी देयर आर 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ गिवन इन योर now see the factors which spread communicable diseases. Okay, I told you like cholera, typhoid, diarrhea, jaundice and polio, they are waterborne and foodborne। खासकर जो फ्लाइज होते हैं वो खाने को गंदा कर देते हैं, फिल्दी कर देते हैं। फिल्दी मीन्स डर्टी। और ख़ासकर जो वेंडर्स होते हैं उनसे खाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो खाने गंदे हाथों से बनाए। इसके अलावा चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवर्म, ये वूपिंग कफ, ये सब भी ट्रांसफ़र होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ना। देयर जर्म्स कैन बी ट्रांसफर डायरेक्टली थ्रू टॉवल्स और हैंकरचिप्स, इसलिए हमें दूसरों के टॉवल या हैंकरचिप्स नहीं यूज़ करना चाहिए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ना। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एकदम सिंगल सेल से होते हैं, या फिर सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, ना यू ऑल नो सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके ना, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जर्म्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जो है बीमारियां फैलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया ना, ये सब जो है ना बीमारियां फैलाती हैं। वो कैसे? एयरबॉर्न के ज़रिए, चाहे वो खुले हों हवा में, या वो वाटरबॉर्न हो पानी से, गंदगी, पानी के गंदगी से, या खाना के गंदगी से। तो इस तरह से डिजीज़ेस फैलते हैं ना। प्लीज़ सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया ना। हमें जो मलेरिया होता है ना, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है? प्रोटोजोआ ना। वी से दैट मस्कीटो से फैलता है, लेकिन मस्कीटो जो जर्म्स कैरी करते हैं वो प्रोटोजोआ है। ओके, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो
मलेरिया और डिजेंट्री बीमारी लाते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट इज़ वायरस। वायरस का तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे फीवर आना, चिकन पॉक्स होना, डेंगू आना, पोलियो आना, मीज़ल होना, वायरल फीवर होना, यहाँ तक कि एड्स होना, कॉमन कोल्ड होना, और सबसे बेस्ट एग्जांपल स्वाइन फ्लू, अभी जो कोरोना वायरस है वो। तो ऑल दीज डिजीज़ेज आर कॉज बिकॉज ऑफ द वायरस, बिकॉज ऑफ द डेडली वायरस। ओके ना, तो हमें वायरस से बचना पड़ेगा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म से बचना पड़ेगा, इस तरह के इन्फेक्शन से। तो इसीलिए हमें अपने आप को क्लीन रखना पड़ेगा, खाना को क्लीन रखना पड़ेगा, और जो भी कुछ खाते हैं उसको कवर करके खाना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीज़ेस से और फूड बॉर्न डिजीज़ेस से और एयर बॉर्न डिजीज़ेस से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट वन वील मूव टू फंगल फंजाई। Now what is fungi? Fungi is actually food, best example food poisoning। ना हम लोग को जो फूड पॉइजनिंग होता है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द फंगस। जो रिंग वॉर्म हुआ, फिर उसके बाद आपको फील होता होगा, आप जितना इचिंग करोगे अपने स्किन पे, आपको उतना ही ज़्यादा स्किन में डिजीज़ेज़ होने लगेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है रिंग वॉर्म। इसके अलावा जब आप कुछ उटपटांग खा लेते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना। तो ऑल दिस वी शुड प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम सच टाइप ऑफ फंगस। ना ऐसे भी आजकल डेडली और फंगस के बारे में आप सुने ही होंगे। फंगस जैसे ब्रेड फंगस होते हैं, जैसे और भी जगह पे फंगस होते हैं, खासकर अभी जो फंगस चले हुए हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस। तो ऑल दीज फंगस आर वेरी डेंजरस। ओके, ये हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। लास्ट वन विल मूव टू टाइफाइड, निमोनिया जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? बैक्टीरिया से ना। बैक्टीरिया इज़ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियाँ लाते हैं, जैसे टाइफाइड, निमोनिया, बच्चों में निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस जिसके बारे में अभी पढ़ा। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी। तो ये सब जो बीमारियां हैं वो कौन लेके आता है? बैक्टीरिया। तो हमें अपने आप को बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ से बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं? जब हम लोग जंक फूड खाना ना खाएं, जब हम लोग क्लीन वाटर, क्लीन फूड, क्लीन हैंड से खाना बना हुआ और फूड को, खाना को गंदा ना करें, पानी को गंदा ना करें, एयर को गंदा ना करें, और हर कुछ क्लीन हो हमारे आसपास, तो हम लोग अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। ओके, now all of you please go through the lesson up till where we have studied. Okay, next day I will continue with the lesson. I want all of you to please go through the lesson. It's a very interesting topic where you should be knowing what is happening because of the diseases. What will happen to the food, and what will happen if we will not cover the food, then the diseases will spread slowly. Nowadays it's spreading very quickly. Okay, thank you so much children. Enjoy the day and keep preparing for your upcoming test. Thank you so much.